Hello friends, today we would like to think about units and dimensions part 6. You know that very well friends, in part 4 and part 5 we discussed the most timely topic of this chapter, or I can say heart of this chapter, and you have also felt this point. You have also experienced about the, we can say that questions of this part 4 and part 5. Guru mantra, that means 1 2 3 4 चारों मिलके साथ चले तो कर दे चमत्कार. So this type of questions we have solved. In the last exam you also discussed those students who have not registered their name, they can register. You can see that by considering or by communicating or by contacting, we can say that assistant sir. Okay, so we have to think about today's lecture, units and dimension, very IMP for JEE NEET. So B group student be alert about it, because many questions we can say that already in medical entrance exam from this department. तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है. उसके पीछे का राज है दो वर्ड्स है, JEE NEET, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजा ऐसा अगर कंसेप्चुअली थोड़ा पढ़ो तो व्हाट इज द टॉपिक? डायमेंशनल एनालिसिस फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. So what do you mean by trigonometric function? You know that very well, trigonometric function. You have idea about trigonometric functions, sine, cos, tan. So this type of functions you have already idea about it. So now we would like to apply the concept of dimensional analysis for trigonometric functions. Concentration required. Suppose there is one equation, y is equal to a sine omega t. This is equation, you can see y is equal to a sin omega t. So don't worry about the entire equation. Your first punch always on trigonometric functions. From today, if you are dealing with word like dimensional analysis and there is trigonometric function, bindas, you have to think about only trigonometric function. आज से डायमेंशनल एनालिसिस के साथ डील करो और कोई भी इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, सब कुछ भूल जाओ, सीधा पंच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लगना चाहिए. सो यू कैन सी इन दिस एंटायर इक्वेशन, दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ओमेगा टी. रेडी? अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिटेक्ट करने के बाद आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन, लाइक अर्जुन, जिस तरह अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, तो ये पूरी मछली है. देखो, तो आपको जिसे कह सकते हैं मछली की आंख, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल वही दिखना चाहिए. सो दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड सिंपली एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. यू नो दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेज. दूसरा नाम है इसका फेज. वी विल डिस्कस अबाउट इट इन लेटर वे. ओके, सो first of all detect the trigonometric function, then you have to focus on only angle. So what is the angle? Omega t. So don't forget from today, whatever the angle of trigonometric function, it is always dimensionless. This is the most IMP point. Angle of trigonometric function always dimensionless. That means there is no dimensional formula at all. So what is the dimensional formula for this angle? So dimensional formula for omega t, it is simply m0 l0 t0, because it is dimensionless quantity. Don't forget. So this is the punch of this lecture, most IMP from today. Angle of any trigonometric function always dimensionless. Or what is the dimensional formula for angle of trigonometric function? It is m0 l0 t0 और m0 l0 t0. most IMP. तो आपको ये याद रखना है. अब इसमें आपको धीरे से क्वेश्चन पूछे, if this type of equation is given, then concentration required. A is the amplitude. This is suppose amplitude यानी maximum displacement. So what is the unit of amplitude? Meter. और omega, it is called, this omega, it is called angular frequency. It is called omega.
it is not called any type of W, but it is called omega, Greek letter. So if A is the amplitude and angular frequency is omega, then omega representing angular frequency, then obtain the dimensional formula for omega. ऐसा क्वेश्चन पूछे, डोंट वरी, आपका ओमेगा देखो एंगल में पड़ा हुआ है, ये रहा ओमेगा, मगर हम तो जानते हैं ओमेगा टी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l0 t0, और t टाइम है तो ओमेगा को सब्जेक्ट फॉर्म में लाओ तो m0 l0 t को धीरे से धक्का लगाओ तो टाइम डिनोमिनेटर में आ जाए। तो अपन लोग तो जानते हैं m0 l0 t0 टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला 1, ए t⁻1 गुना टी मार के ऊपर। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा? इट इज t⁻1 t power -1, you can see. So in this way we can solve, we can say lots of questions. So but what is the basic point? इतना डिस्कशन किया, उसमें एक ज बात सीखनी, अब इसकी प्रैक्टिस शुरू करने वाले। आज से कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूले रिलेटेड डिस्कशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखा मतलब उसके एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा। क्या लिखा? m0 l0 t0। मगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल पहचानना पता चल जाना चाहिए, ये इसका एंगल है, पता चला तो ये जो एंगल है ये रहा, उसको एंगल या फेस कहा जाता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l0 t0 मोस्ट IMP। तो आपको ऐसे क्वेश्चन दे उससे पहले और थोड़ा डिटेल स्टडी करो। यही फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूला में y इज इक्वल टू, यू कैन सी y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। मगर ये sin ओमेगा t है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। डायमेंशनल एनालिसिस में अभी हमने डिस्कशन किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई रोल ऐसे नहीं है, देखो क्योंकि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो 0 है। तो ऐसी सिचुएशन में ये इक्वेशन अल्टीमेटली इस तरह भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, अगर डायमेंशनल एनालिसिस के लिए, ऐसे डायरेक्ट लिखना जरूर नहीं है, मगर इसका मतलब ये है कि y सिंपली रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा डिटेल स्टडी करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। क्यों ये y डिस्प्लेसमेंट है, वो सिंपली एम्पलीट्यूड और y दोनों सेम है, यानी कि y इज द डिस्प्लेसमेंट, a इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का दूसरा मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये जो साइन है, आप मैथ्स अच्छी तरह पढ़ते हो तो साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, जिसको अपन लोग कहते हैं साइन फंक्शन की रेंज। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मिनिमम वैल्यू माइनस आएगा। अगर मैं साइन ओमेगा टी की जगह -1 कंसीडर करूं तो माइनस है, अगर मैं इसकी जगह +1 कंसीडर करूं यानी मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करूं तो आंसर आएगा प्लस है। देखो तो साइन फंक्शन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू है वो वेरी करेगा, कहाँ से? -1 से लेकर +1 तक। तो साइन फंक्शन का टेंशन लेने का नहीं, हाथ से ऐसा इक्वेशन आए मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटा दो तो y डायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड, नथिंग, यू कैन सी मोस्ट टाइम की। तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम ज होगी और दिख ही रहा है y डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब भी होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डोंट वरी। मगर तो ये दो पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस एक बार, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल ऑलवेज dimensionless quantity. What is the dimensional formula of any trigonometric function? Always m0 l0 t0। अब दोस्तों इसको साथ में लेके हम अब कहानी शुरू करते हैं। तो अब मैं टर्न बाय टर्न कुछ क्वेश्चन इधर से फेंकता हूँ और कुछ आपको घर पे होमवर्क के लिए, तो अगली टेस्ट में ये सब कुछ सिलेबस में हो जाएगा। तो जरा देखना, टुडे वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देन एक्सपोनेंशियल। अब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, y is the displacement, y is equal to 2a sin kx cos omega t। What is the question? If y displacement is equal to 2a sin kx cos omega t, then obtain the ratio of dimensional formula of omega to डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k।
ये जो के है यहाँ पे देखो के, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और यहाँ पे जो ओमेगा है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करके इसका रेशियो फाइंड करना है। बिंदास, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर? 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उठाओ। नंबर 1 sin kx। मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे मतलब मछली दिखे, उसके बाद उसकी सीधी आंख दिखनी चाहिए, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मछली की आंख है, उसका एंगल। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? न्यूमेरिकल स्टार्ट हियर। kx is the angle of sine, so obviously dimensional formula for kx, it is m0 l0 t0. And what is the angle of cosine function? It is omega t. So what is the dimensional formula for omega t? It is also m0 l0 t0, because ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल ऑलवेज डायमेंशनल लेस होते हैं। अब इसमें से x डिस्टेंस है, डोंट वरी, सो k इज इक्वल टू m0 l0 t0 अपॉन x यानी डिस्टेंस। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर k? आई कैन राइट डायरेक्टली, डिस्टेंस का होगा l1, ऊपर आएगा तो l-1 t0 या t0, मोस्ट IMP। अब इधर होगा ओमेगा, आपका टारगेट है, बिकॉज they asked the question of dimensional formula of omega, so omega को सब्जेक्ट फॉर्म में रख के t को उस साइड भेज दे, so t that means time, don't worry, ये सब कुछ मेंशन किया होगा, x डिस्टेंस, t टाइम, नो प्रॉब्लम। so dimensional formula for omega, ये टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t1 होगा। अगर वो गुलाटी मार के ऊपर जाए तो नेक्स्ट पॉइंट होगा m0 l0 t-1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर omega. But we have to think about ratio. So if you find ratio of dimensional formula for omega to k is equal to omega to k, omega का डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपली t-1 सीधा। अब ये जीरो वाले टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, इधर k का डायमेंशनल फॉर्मूला l-1, तो ओमेगा और k का जो डायमेंशनल फॉर्मूला उसको रेशियो के फॉर्म में लाए तो t-1 l-1, दिस इज योर आंसर। वेरी IMP क्वेश्चन वी हैव डिस्कस। सभी क्वेश्चन कोई ना कोई कॉम्पिट में आए हुए, डोंट वरी, अपन लोग पर्टिकुलर लेवल पे जाएंगे तब नाम भी डिसाइड करेंगे, बट दिस इज योर, वी कैन से दैट मेथोडोलॉजी टू हैंडल विथ, वी कैन से दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक कदम आगे बढ़ते, अब मैं आपको जो क्वेश्चन देता हूँ वो आपको अपने आप ट्राई करनी है। वीडियो आपको क्या करना है आप जानते हो, जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो पॉज करो, मैं बाद में सोल्व करवाने वाला हूँ, आपको वीडियो पॉज करके हो सके उतना अपना दम लगाना है। ओके, सो क्वेश्चन में इधर से दे रहा हूँ, मोस्ट IMP, इफ F इज द फोर्स F इज इक्वल टू A cos k1x plus B sin k2t, this is your, we can say that formula. If force F is the force F is equal to A cos k1x plus B sin k2t, where x is the distance and t representing time, then obtain the ratio of dimensional formula of A to B and obtain the ratio of dimensional formula of k1 to k2। पहले A का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करो, फिर B का उसका रेशियो लो, फिर k1 का डायमेंशनल और k2 का डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर इसको रेशियो। स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, आपने ट्राई की होगी, अब अपन लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले नाउ सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डोंट फॉरगेट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर ये फोर्स है मतलब इस इक्वेशन का हर एक टर्म, याद करो डिस्कस किया था सेकंड थर्ड पार्ट, हर एक टर्म चिल्ला चिल्ला के एक ज बोल रहा है, अगर ये इक्वेशन फोर्स का तो मैं भी फोर्स, तो पूरा इक्वेशन फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा टर्म फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। मगर इस टर्म में अच्छी तरह देखो, A cos k1x,
मगर मैंने कितनी बार बोला, ए के साथ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मतलब ये पूरा टर्म सिर्फ एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कोसाइन तो सिर्फ ए को कितना चेंज करना है वही देखेगा, कोसाइन ए को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कोसाइन सिर्फ ए की वैल्यू कितनी चेंज करना वही देखेगा, अभी वो हमने डिस्कस इधर किया। तो ये पूरा जिसे कह सकते हैं टर्म सिंपली एक ज पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये पूरा टर्म चेक करो, b sin k2t also representing force, but in this entire equation there is b and then sin k2t, sin is the trigonometric function, so this entire term only representing b, there is no importance of sin k2t because sin simply representing the change in value of b, it doesn't represent b but it represents just change in value of b, तो डोंट वरी। तो ये पूरा b है, तो ये तो a का मतलब भी होगा फोर्स, और ये पूरा टर्म फोर्स है, मगर इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो b क्या होगा फोर्स। तो बहुत ही इजी, तो अपन लोग पहले a और b फाइंड कर लेते हैं। हियर a cos k1x सिंपली रिप्रेजेंटिंग फोर्स, बट मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंसीडर मत करो, तो सिर्फ a बचा, सो हियर a इज इक्वल टू फोर्स एंड इन दिस एंटायर टर्म b also representing force because don't worry about sign, so b representing also force. So what is the ratio of dimensional formula of a and b, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अपन फोर्स का यानी लिखने की जरूरत है ही नहीं, सीधा अपन लोग लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स फोर्स कैंसिल, तो डायरेक्ट आंसर आएगा ये। सो दिस इज द रेशियो ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। वापस एक बार देखो, ये फॉर्मूला मैं वापस लिख रहा हूँ, a cos k1x, आपको जब भी जिसे कह सकते पॉइंट ऐसा फॉर्मूला दिया, देखो f, मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाता हूँ, तो f इज इक्वल टू a cos k1x, तो f क्या है, f फोर्स है, तो ऑब्वियसली ये भी पूरा टर्म फोर्स ही होगा, मगर पूरे टर्म में a भी है कोसाइन भी है, मगर हमने पहले बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई फिजिकल क्वांटिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ वो क्वांटिटी में कितना उतार चढ़ाव आएगा वो रिप्रेजेंट करता है, तो ये हटा दो, तो ये सिंपली जो कैपिटल ए है वो भी क्या रिप्रेजेंट करता होगा, फोर्स। इसी तरह ये पूरा टर्म है, उसमें b है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, मगर साइन तो सिर्फ b की वैल्यू बढ़ाने या कम करने में रोल प्ले करने वाला है, तो इसको भूल जाओ, तो b भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स। तो अगर f फोर्स है तो a भी फोर्स b भी फोर्स, बिंदास। तो a फोर्स b फोर्स हो तो उसका रेशियो लो, तो आंसर क्या आएगा, m0 L0 T0। अब अपना दूसरा पंच है k1 k2, तो k1 k2 कहाँ पे, देखो k1 इधर है जो कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में है, और k2 इधर है जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में, और अपन लोग तो जानते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, अब आप इसमें अच्छी तरह समझ चुके हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल ऑलवेज डायमेंशनलेस, सो हियर वी कैन राइट हियर k1x is the angle of cosine, so here k1x is equal to m0 L0 T0, so k1 is equal to m0 L0 T0 upon x, but what do you mean by x, distance, so what is the dimensional formula for k1, it is L0, मैं सिर्फ L0 इसलिए क्योंकि डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L1, ये रहा x का L1, तो आंसर आएगा L-1। अब आता है k2, तो k2 इज द पार्ट ऑफ एंगल ऑफ विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है k2t, और k2t है वो तो होगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्योंकि वो एंगल है, तो ये तो अपन लोग जानते हैं, ये रही मछली, ये रही आंख, ये रही मछली, ये रही आंख, आंख ऑलवेज डायमेंशनलेस, ऐसा बताने के लिए। So K2 we can say that M0 L0 T0, T said है, T क्या है, टाइम, तो अपन लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं K2 का डायमेंशनल फॉर्मूला, इधर टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, T1 गुलाटी मार के ऊपर, तो T-1। अब ये दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना हो, so we can find here because the ratio of dimensional formula of K1 and K2. What is the dimensional formula of K1? It is L-1, and K2 it is T-1. So L-1 T plus 1. This is your answer. You can see. Very interesting. Most time पे friends ऐसे question पूछे तो be alert. ये बहुत ही IMP है,
आपको ये देखना, ये फोर्स है तो इस इक्वेशन का हर एक टर्म चिल्ला चिल्ला के फोर्सेज बोलना चाहिए। प्लस प्लस जिसे कह सकते हैं कि एंगल में जाओ तो उसका एंगल है वो भी जिसे कह सकते हैं कि डायमेंशनल लेस होना चाहिए। डोंट फॉरगेट, एंगल डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब चेक करो, K1 का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? L1 L-1 और x का डायमेंशनल फॉर्मूला L, तो ऑब्वियसली ये दोनों का L-1 और L करो तो आंसर 0 जाएगा। ये कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन फेंके आपको और पूछे कि इस फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल चेक करो, तो उसका एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला बिंदास होगा m0 L0 T0। अब मैं ऐसा क्वेश्चन बेस्ट करवाने जा रहा हूँ जो बहुत ही सुप्रीम क्वेश्चन है, तो बी अलर्ट अबाउट इट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये हमने जो फेंका था वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट। अब एक और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, डोंट वरी, एंड देन विल थिंक अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जो क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। y इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू a sin omega t minus kx, where a is the amplitude, omega angular frequency, t representing time, x representing distance। तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्टेन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर के। स्टार्ट, टेक योर टाइम। सो ये डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर के, आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया, देखते इधर। वी वुड लाइक टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर के। तो आपका के कहां पे है? इधर। तो ये के इज द पार्ट ऑफ एंगल। देखो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल ये, दिस इज, यू कैन सी दैट एंगल। और अपन लोग तो जानते हैं एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 L0 T0। मतलब ये जो पूरा टर्म है ओमेगा t माइनस kx, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 L0 T0। मगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मुताबिक देखे तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अपन लोग तो जानते हैं kg माइनस kg इट ऑलवेज गिव kg। याद करो, 5 किलोग्राम मास में से 3 किलोग्राम मास सब्ट्रैक्ट करो तो 2 किलोग्राम मिले। तो अगर ये रिजल्टेंट डायमेंशनल लेस आ रहा है तो इस इक्वेशन का हर एक टर्म, यानी ये टर्म भी क्या होगा? ऑब्वियसली डायमेंशनल लेस। तो अपन लोग बिंदास लिख सकते हैं हियर ओमेगा t m0 L0 T0 and kx also m0 L0 T0. So what's your target? Your target to find dimensional formula for k. So k should be required in the form of subject. So what is the, we can say that x is the distance, so it is L1 गुलाटी मार के ऊपर, so minus L1, this is the dimensional formula for k। अगर यही क्वेश्चन में पूछते obtain the dimensional formula for omega, don't worry, तो इसको उठाते और ओमेगा t इज इक्वल टू m0 L0 T0, तो ओमेगा इज इक्वल टू m0 L0 T आएगा नीचे टाइम के फॉर्म में, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T1। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ओमेगा? इट इज T-1 डेफिनेटली। तो और देखो अभी ये हो ही जाए। देखो अब इसको मैं थोड़ा पोस्टमार्टम करता हूँ। एंगल, आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछेंगे इसमें, ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया, मगर यही इक्वेशन फेंकेंगे और बोलेंगे कि ये इक्वेशन है वो मैथमेटिकली या डायमेंशनल एनालिसिस के तौर पे चेक करो, ये बिल्कुल सही है कि रॉन्ग। याद करो लेक्चर LGTV वाला। तो ऐसा इक्वेशन कोई भी फेंक दे तो ये जिसे कह सकते हैं इसका डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है कि नहीं वो चेक करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज आपको 3 जगह पंच मारने। पहले y डिस्प्लेसमेंट, तो इसका यूनिट होगा मीटर, ए भी एम्पलीट्यूड, उसका यूनिट भी मीटर, यानी ये दोनों तो सेट हो गए। अब तीसरा जो अपना पंच है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल ऑलवेज डायमेंशन लेस, यानी कि m0 L0 T0 होना चाहिए। तो अपन लोग चेक करें, ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? T-1 और टाइम का t, तो देखो ये हो गया 0, तो इसका भी 0, ऐसा k का L-1। तो
ये जो डायमेंशनल लेस यानी कि एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 a0 t0 होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे जिसका एंगल डायमेंशनल लेस ना बनता हो, मतलब समझ लो वो इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है। तो अपन लोग अब ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो धांसू इक्वेशन माना जाता है। एक फिजिक्स की बुक बन रही है और वो बुक बनते वक्त कुछ इक्वेशन लिखे जाते हैं, मगर उसमें से कुछ इक्वेशन सही है और कुछ इक्वेशन रॉन्ग है। तो अपन लोग है वो रॉन्ग इक्वेशन को डिटेक्ट करने का जिम्मा अपने को दिया है। बुक प्रिंटेड होके पब्लिश हो उससे पहले आपको एक काम दिया है, तो मैं वो जिसे कह सकते हैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नो डाउट। Just a minute. So now you understand what is the, we can say that importance of trigonometric function. Now you know that very well. So okay, now be ready for it. Okay, now 4 equations here given, and out of these 4 equations few are right and few are, we can say, the wrong. Number 1, it is y is equal to capital A sine 2 pi t upon capital T. Capital T is the periodic time, don't worry, ये periodic time है. A is the amplitude. First equation, then second. Check the second equation. Just a minute. Okay, now second equation you can see. Second equation already y is equal to a sine. Y is equal to capital A sine Vt. This is the second equation. Now third equation. Third equation very important. Y is equal to a by t, यानी a upon t. Then there is sine t by small a. This type of equation given. And there is fourth equation also given. So we will write here fourth equation. It is y is equal to capital A by root 2. Capital A by root 2. Then inside the bracket sine 2 pi t plus cos 2 pi t upon capital T. This is your, we can say that equation. So friends, now what is the question? So 4 equations given here. Small a is the, capital is the maximum displacement, v is the speed of particle, and capital T is the periodic time. And simply you can see now small a, capital A already given. There is a, we can say that कैपिटल इधर स्मॉल ए की जगह मैं कर देता हूँ कैपिटल ए। इन लोगों को मिस्टेक है मगर अपन लोग फिर भी जा रहे कैपिटल ए में, डोंट वरी। ओके, नाउ व्हाट्स द, वी कैन से दैट क्वेश्चन। सो रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूलाज ऑन डायमेंशनल ग्राउंड्स। चलो, डायमेंशनल एनालिसिस के मद्देनजर रखते हुए इसमें से रॉन्ग फॉर्मूले डिटेक्ट करने हैं। तो टर्न बाय टर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन, इज इट राइट और रॉन्ग, एनालाइज। तो पहले y डिस्प्लेसमेंट, यस, a भी डिस्प्लेसमेंट, कोई टेंशन नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पकड़ो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल वही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट और मेन पंच होना चाहिए। अब ये 2 पाई को तो भूल जाओ क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो t यानी टाइम होगा और कैपिटल T भी टाइम है, तो टाइम अपॉन टाइम कैंसल। मतलब ये जो 2 पाई बाई टी, 2 पाई टी अपॉन टी है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव किया तो क्या आया, डायमेंशनल लेस आया। मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल सही, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0 होना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल सही है। अब सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन में y इज इक्वल टू a भी एम्पलीट्यूड, y भी डिस्प्लेसमेंट सेम, मगर साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, उसका एंगल चेक करो vt। तो v वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t1 कैंसल। तो देखो इधर जो एंगल है vt,
उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है L1, मगर आना चाहिए क्या, M0 L0 T0. एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन must be, we can say that dimensionless. Here no dimensional formula is equal to M0 L0 T0. That means the second equation is thoroughly wrong. Now third equation. तो थर्ड इक्वेशन में तो यहाँ ही चेक नहीं करना है, क्योंकि y डिस्प्लेसमेंट हो तो a बाई टी भी डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए. a एम्पलीट्यूड है, उसका यूनिट होगा मीटर, t टाइम है, उसका यूनिट होगा सेकंड. तो मीटर पर सेकंड है, वो तो यूनिट हो जाएगा वेलोसिटी का, जबकि y है डिस्प्लेसमेंट. तो a बाई टी को चिल्ला चिल्ला के एक चीज बोलनी चाहिए कि मैं तो डिस्प्लेसमेंट हूं, मगर हमने फाइंड किया तो वो मिला मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी. दैट मींस दिस इक्वेशन इज आल्सो रॉन्ग. कोई बोले सर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेक नहीं किया, कर लेते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है t बाई a, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t1 और इसका होगा L1. तो ये भी आप चेक करो तो M0 L0 T0 नहीं हो रहा है, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है वो तो एक ज होना चाहिए, M0 L0 T0. मतलब ये थॉरली रॉन्ग है. अब थर्ड क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू a बाई √2 को टेंशन लेने की जरूरत नहीं. तो y इज इक्वल टू a, यानी इसका और इसका यूनिट तो मीटर मीटर हो गए. अब इधर देखो, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का एंगल देखो 2 पाई t अपॉन t, तो उसका तो हमने देखा M0 L0 T0. अब कोसाइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका एंगल भी वही है 2 पाई t बाई t, मतलब वो भी डायमेंशनल लेस. यानी कि इस इक्वेशन के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सबके सबके एंगल के डायमेंशनल फॉर्मूले है M0 L0 T0. मतलब ये पूरी तरह कसौटी में पास. मतलब फर्स्ट और फोर्थ सही है, सेकंड और थर्ड है वो एकदम रॉन्ग है, यानी कि डायमेंशनल ग्राउंड पे वो सही नहीं निकलते हैं. सो यू कैन सी दिस इज द मोस्ट टाइम पॉइंट. तो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डील करने का हमने डिस्कस किया. आपको एक ज बात याद रखनी है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, यानी वो पूरी मछली, उसमें आपको देखना चाहिए उसका एंगल, ये कहते हैं एंगल. और वो एंगल क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस, यानी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली इट शुड बी, वी कैन से दैट M0 L0 T0. अब अपन लोग सेकंड पोर्शन में जाते हैं, वो भी मोस्ट टाइम पे है. अब ऐसे क्वेश्चन में आपको एक दो होमवर्क में देता हूँ जो आपको ट्राई करनी है घर पे. ओके, एक क्वेश्चन में इधर दे रहा हूँ जो आप अपने आप घर पे ट्राई करना. ओके, ऐसा इक्वेशन दिया, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा x बाई v माइनस k. यू कैन से दिस इज योर इक्वेशन. y इज द डिस्प्लेसमेंट, a इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, x is the distance, v is the speed. Then obtain dimensional formula for k. आपको k का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है. दिस इज योर क्वेश्चन. यू कैन सी, ऐसा इसे कह सकते हैं कि एक और क्वेश्चन देता हूँ, बहुत इजी है. इफ dy बाई dt, डोंट वरी, dy बाई dt is equal to a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट. डराने के लिए बिंदास. फिजिक्स का पहला काम है डराने का, इसलिए वो डराएगा, डेटा फेंक के डराएगा, मगर बेटा डरेगा नहीं. डेटा फेंक के भले फिजिक्स डराए, मगर बेटा डरेगा नहीं. सामने जाओ, इसमें कुछ दमखम नहीं है. क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. चलो ये आपको फाइंड करना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ट्राई करना. सो दिस आर द टू क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व. In next lecture we would like to obtain, or we will obtain the solution of it. Now we'll think about the second part. So just analyze it and then we start second part. Okay friends, now we start the second part. It is based on exponential function. ये हमने देखा trigonometric function. अब आ रहा है exponential function. कोई बोले वो क्या है? Don't worry. This is, you can see that exponential function. It is called e raised to something.
अगर मैं ऐसा लिखूं y इज इक्वल टू e रेस टू 2x, ये इक्वेशन देखो, दिस e इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फ्यूचर में मैथ्स में आप ऐसे फंक्शन पढ़ने वाले हो, आपने log के बारे में पढ़ा है, log यानी जो जनता log है उसके बारे में नहीं, लोगों के बारे में नहीं, log के बारे में, लॉगरिथम याद करो। आप ऐसा लिखते थे log 5 इज इक्वल टू 2x, तो इधर से log हटाओ, तो पूरा स्लोगन याद से याद रखो, log हटाओ एक्सपोनेंशियल लाओ, तो log यानी कि लोगरिथमिक फंक्शन हटेगा तो सामने आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर इसी तरह ये इक्वेशन ऐसा होता है e रेस टू 2x इज इक्वल टू 5, तो इधर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन हटाओ तो सामने क्या आ जाएगा log, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हटता है तो 2x इज इक्वल टू बन जाता है log 5। तो स्लोगन क्या है, फ्यूचर में ये पढ़ने वाले मैथ्स में, डोंट वरी, log हटाओ एक्सपोनेंशियल लाओ और एक्सपोनेंशियल हटाओ log लाओ। मगर अपन लोग ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इधर देखो ये फॉर्मूला दिया है इधर, सो चेक दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिस तरह हमने साइन, कोसाइन, टेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मछली बोला, ये भी दूसरी मछली, तो वहां पे साइन, कोसाइन, टेन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मछली के फॉर्म में थे, इधर होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन मछली के फॉर्म में। यानी पूरे इक्वेशन में अगर ई दिखे, ई ऐसा बड़ा वाला ई, इसको कभी कभार ये लोग डराने के लिए ऐसा भी फेंकेंगे, y इज इक्वल टू ई एक्स पी 2x, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर 2x, उसके बदले ई भी दे दे, उसका मतलब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही हुआ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहला वर्ड, पहला लेटर लिया ई, तो आज से ये फंक्शन, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए, याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। In the case of trigonometric function, you have to focus on angle. Similarly here, in the case of exponential function, you have to focus on power. So what is the power of this exponential function? You can see it is 2x. So from today, most IMP, power of exponential function always dimensionless. Very IMP. So we write here power of exponential function is always dimensionless. Very IMP. So what is the dimensional formula of the power of exponential function? Always m0 l0 t0। तो ये 2x जो है पावर है, तो 2x का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l0 t0। कोई बोले सर आप तो पहले बोल रहे थे 2 का कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ 2 हटा दो, तो x का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l0 t0। मोस्ट IMP ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, वेरी IMP। सो फ्रॉम टुडे whenever you are dealing with trigonometric function, then your focus always should be on angle, and exponential function, then your focus always on, we can say that power। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर ऑलवेज डायमेंशनलेस, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, मैं नीट 2013 का एक क्वेश्चन फेंक रहा हूं और आप देखना क्वेश्चन को देख के लगेंगे ओ माय गॉड, और जैसे ही क्वेश्चन सोल्व होगा ओ माय गॉड में से जिसे कह सकते हैं कि ओ निकल जाएगा और लगेगा ओ माय गॉड में माय गॉड, वेरी इजी। सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड हियर, p इज इक्वल टू p नॉट exp, देखो डराने के लिए exp का मतलब आप समझ गए एक्सपोनेंशियल, माइनस अल्फा टी स्क्वायर। कभी कभार ये इक्वेशन ऐसे देंगे p नॉट e रेस टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर, देखो कोई फर्क नहीं, दोनों इक्वेशन सेम, इधर exp की जगह e कर दिया। तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इफ t रिप्रेजेंटिंग टाइम then obtain dimensional formula for alpha। ये जो अल्फा है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करो। तो दोस्तों अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है तो नो प्रॉब्लम, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह इधर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर फोकस करें, तो देखो ये रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये रहा एक्सपोनेंशियल। तो व्हाट इज द पावर ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन? ऑब्वियसली अल्फा टी स्क्वायर। कोई बोले माइनस रहेगा, भले रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस की कोई टेंशन नहीं। सो वी नो दैट अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा?
m0 l0 t0. Why? Because what is the power of this exponential function? It is minus alpha t square. So we know that very well. The dimensional formula of power of exponential function always equal to m naught l naught t naught या m0 l0 t0. अब अल्फा को सब्जेक्ट फॉर्म में लाओ क्योंकि वो हमारा टारगेट है, और धीरे से टी स्क्वायर को धक्का मार दो। टी मतलब टाइम, मगर उसका आएगा स्क्वायर। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा? ऊपर तो अपन लोग टी जीरो रखे क्योंकि इधर नीचे टाइम ही है। कोई बोले ना चले तो ना चले तो लिखो डोंट वरी। अब टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी, तो टी टू। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा? इट इज टी माइनस टू। IMP इन नीट 2013 यू कैन सी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ डील करने का पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह देखो, ये सपोज प्रेशर है, दिस इज प्रेशर, सो ऑब्वियसली व्हाट इज दिस पी नॉट? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला टर्म है वो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा वापस, वो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू में किस तरह उतार चढ़ाव आएगा वही रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ये प्रेशर कितना चेंज होगा वो बताएगा नहीं, मतलब ये जो P है उसका फाइनल पॉइंट तो होगा P नॉट, यानी P नॉट यानी ये भी प्रेशर होगा ये भी प्रेशर होगा। तो ये याद रखना है आज से। तो ये इक्वेशन में P प्रेशर हो रही है, उस प्रेशर में कितना चेंजेस होगा वो बताना है। एक्सपोनेंशियल कितना चेंज होगा वो, ये एक्सपोनेंशियल वर्ड के बारे में आप और डिस्कस करने वाले हो। मगर हमारा स्लोगन क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर ऑलवेज डायमेंशन लेस। आज से जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा सीधा पंच मारना है किसके ऊपर? एंगल के ऊपर। और जहां पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा सीधा तीर चलाना कहां पे? उसके पावर पे। तो ऐसे क्वेश्चन अब सोल्व करना शुरू करते हैं। सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे हैं। तो मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ से जिसे कह सकते फेंक रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू में। S इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस E रेस टू बीटा एक्स टी, डोंट वरी, ये सब पूछा है। वेयर S इज द स्पीड, ओके, एंड S is the speed and x representing distance, t representing time. Then what is the, we can say that dimensional formula for beta. Your target to find dimensional formula for beta. तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करो बेटा स्टार्ट। तो अपने आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और शुरू करो। ओके तो अब अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो अपन लोग को टारगेट है बीटा। सो वेयर इज योर बीटा? हियर यू कैन सी इट इज ऑलरेडी पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर है यानी बीटा एक्स टी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो बहुत जानते, बिंदास डायमेंशनलेस। तो बीटा को सब्जेक्ट फॉर्म में लाओ तो m0 l0 t0 डिवाइड बाय x into t. So what is the dimensional formula for beta? m0 l0 t0, x मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला l1, t मतलब टाइम, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला t1। तो व्हाट्स द फाइनल आंसर? l minus 1 t minus 1 गुलाटी मार के ऊपर। तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा l raised to minus 1 t raised to minus 1। वेरी इजी, यू कैन सी। सो वन मोर। तो ऐसा एक और क्वेश्चन, मैं अब जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ फेमस, ऑलरेडी आस्क वी के से दैट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो बी अलर्ट अबाउट इट। ओके सो डिस्टेंस x इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दम है जरा देखना, v नॉट बाय a, स्मॉल a, ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस e रेस टू here 80 minus 80, okay,
where x is the distance, t representing time, then obtain dimensional formula for v नॉट एंड a. चलो यानी v नॉट और a का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है. थिंक अबाउट इट. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ हाउ कैन वी सॉल्व इट. देखो ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन समझ लो आपके कॉम्पिटिटिव में खास करके नीट में दिखेंगे. तो ऐसा न्यूमेरिकल आए तो बिंदास पहले ए का मिल जाएगा, या फिर अपने को कुछ भी सोचे बिना सीधा मछली यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पकड़ो. ए रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर पकड़ो. तो पावर क्या, व्हाट इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन? at. सो वी कैन राइट हियर what is the dimensional formula for a into t? It is m0 l0 t0. अगर a को सब्जेक्ट फॉर्म में लाओ, क्योंकि ये हमारा टारगेट है, डिवाइड बाय t मतलब टाइम होगा, ये रहा t आएगा डिनोमिनेटर. सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a? इट इज t1, टाइम का t1 होगा, ऊपर जाए तो t -1. चलो यहाँ तक किसी को डाउट? सो वी हैव ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a. तो आपको मैं बता दूं ये पैटर्न फिक्स. इधर जो जमेला होगा, देखो ये जमेला दिया, इधर झुमका ऐसा दिया ना, उसमें वो लोग ऐसी क्वांटिटी रखेंगे जो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल पावर में होगा. फॉर एग्जांपल देखो इधर ये है, और यही ये आपको मिलेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में बिंदास. इधर जो कुछ भी जमेला होगा उसमें से कुछ क्वांटिटी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में होगी होगी होगी. इसीलिए सबसे पहले अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर के ऊपर सीधा जंप लगाओ या फिर इधर डिस्कस करो तो आपको आंसर मिलेगा. देखो पहले मैंने इधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर के ऊपर जंप लगाया, सीधा फोकस किया, तो मैंने ए का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव किया. अब मैं v नॉट, बिकॉज योर नेक्स्ट टारगेट टू ऑब्टेन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर v नॉट, तो बिंदास कुछ पता ना चले तो ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो. किसी को सपोज इसमें ना पता चले तो ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, v नॉट बाय a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस v नॉट बाय a e रेस टू at. लो, तो अपन लोग तो जानते हैं x क्या है, x है डिस्टेंस. अगर ये डिस्टेंस का इक्वेशन हो, अपना स्लोगन याद करो, अगर ये डिस्टेंस का इक्वेशन हो तो इस इक्वेशन का हर एक टर्म चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है? अभी सब लोग बोल रहे हैं मैं भी कोरोना वॉरियर, मैं भी कोरोना वॉरियर. तो ये क्या बोल रहा है? मैं भी डिस्टेंस, मैं भी डिस्टेंस. सो x is the distance, then each and every term of this equation representing distance. So v naught by a simply distance x. लो, तो v naught को सब्जेक्ट फॉर्म में लाओ, तो v naught is equal to a into x. तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर v naught, a का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया t-1, और x का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको ना आए, x is the distance, और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला ना आए तो अपने को आईने में देखना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि मैं JEE नीट के लायक हूँ. क्या आंसर आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा. तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला L1. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? इट इज L1 t-1 cos IMT. सो फ्रेंड्स, यू कैन सी दिस इज द मार्वेलस इक्वेशन वी हैव डिस्कस्ड, और मार्वेलस क्वेश्चन आई कैन से. तो ऑलवेज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट्स पावर. पावर ऑफ डायमेंशन, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ऑलवेज m0 l0 t0, और उसके बाद जो भी इधर झुमका यानी कि जमेला मल्टीप्लाई किया होगा वो सिंपली वही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता होगा. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डोंट वरी, जस्ट एनालाइज. ओके, अब अपन लोग एक मस्त क्वेश्चन जिसे कह सकते डिस्कस करने जा रहे हैं, जो खतरनाक क्वेश्चन में माना जाता है, मगर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अपर सेगमेंट के एग्जाम में पूछ सकते हैं. तो जरा ऐसे एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो अभी ये क्वेश्चन है, हियर प्रेशर P इज इक्वल टू, बी रेडी, प्रेशर P इज इक्वल टू सिंपली हियर RT.
RT upon V minus B into e raised to minus a into capital V upon RT। देखो इधर जिसे कह सकते हैं कि कैपिटल V दिया, डोंट वरी। क्वेश्चन क्या है? P is the pressure, T representing temperature, capital V representing volume and R representing constant। ऐसा हमने डिस्कशन किया हुआ है, याद करो। आर टी पी वी, जिसने बहुत अच्छी तरह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पार्ट देखा होगा। तो क्वेश्चन है पूछा, हियर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए इज इक्वल टू ब्लैंक क्वांटिटी, और हियर ए रिप्रेजेंट्स, लो बहुत इजी क्वेश्चन, ए रिप्रेजेंट्स ब्लैंक क्वांटिटी। ए कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, तो मैं आपको नहीं दे रहा हूं, मगर आप जरा देखो पहला पंच आप कहाँ पे मारोगे। ऑब्वियसली इस इक्वेशन के, अगर मैं आपकी जगह हूं तो सबसे पहले इस इक्वेशन में अपना बहुत ही फेवरेट इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले अपन लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर पंच मारेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर डिटेक्ट करो, व्हाट इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो ऑब्वियसली इट इज AV upon RT, you can see। so मैंने थोड़ा डिजिटल कर लिया। so this is, you can see that power। so here AV upon RT, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0l0t0, बिकॉज वी हैव आइडिया अबाउट इट। अब क्या करना है, अब अपने को तो जिसे कह सकते हैं ए में दिलचस्पी है, तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू आर टी बाई वी, क्योंकि a को सब्जेक्ट फॉर्मूला तो आर टी डिवाइड बाई वी। कोई बोले सर ये अब डायमेंशनल फॉर्मूले का पावर 0 0 है, तो ये सबका आंसर क्या आएगा 1। ये मैं शॉर्टकट से करवा रहा हूँ। दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड है यानी आर टी को वी को, तो उसके सबके डायमेंशनल फॉर्मूले डिराइव करोगे तो सुबह हो जाएगी, इसलिए शॉर्टकट है। देखना अभी इसका आंसर फटाक से आएगा। तो मैंने a को सब्जेक्ट फॉर्मूला दिया और डायमेंशनल एस मतलब 1, तो आर टी बाई वी। अब यहां तक किसी को डाउट, मगर याद करो, अच्छी तरह याद करो, इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2-3 में मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में एक इक्वेशन दिया था, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस, केमिस्ट्री। म्यू नंबर है तो भूल जाते हैं, तो पीवी इज इक्वल टू आर टी। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, मगर पहले केमिस्ट्री में। तो पीवी इज इक्वल टू आर टी, तो आर टी की जगह पीवी लिख सकता हूँ। So A is equal to, instead of RT I can write PV, so PV upon V, VV cancel, so what is your A? A is nothing but P, but what do you mean by P? Pressure. So we can say here A represents simply pressure। जबरदस्त। अब ये क्वेश्चन हम डायमेंशनल फॉर्मूला रख के करते तो बहुत ही देर लगती और बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले डिराइव करने पड़ते। तो ये मास्टरपीस है फ्रेंड्स, मोस्ट आईएमपी। वापस देखते ये अपना पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर है, वो तो डायमेंशनल लेस होगा। इसमें से मैंने ये सब्जेक्ट फॉर्मूला है, तो आर टी न्यूमरेटर में, वी डिनोमिनेटर में, आर टी की जगह पी वी, बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन वी वी कैंसल्स पी। सो हियर ए रिप्रेजेंट सिंपली प्रेशर। वेरी वेरी आईएमपी। अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो पूरा ये जो लेक्चर है उसका जिसे कह सकते किंग माना जाता है, मोस्ट आईएमपी। और ऐसे क्वेश्चन आपको मैं एक दो होमवर्क में भी दूं तो ट्राई करने की है। ओके फ्रेंड्स, सो बी अलर्ट। सो वेरी आईएमपी। नाउ डिस्कशन स्टार्ट। 100% से भी ज़्यादा अपना जिसे कह सकते हैं कि आपको पावर देना है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो हियर क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन इन द रिलेशनशिप P is equal to alpha upon beta e raised to minus, there is one point also given, it is alpha z upon, देखना k theta, डरने का नहीं, alpha z upon k theta। okay, so most IMP, P is the pressure, then one more important information given, z is the distance, don't worry,
थीटा रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर, के रिप्रेजेंटिंग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कोई बोले ये सर क्या है, डोंट वरी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या बोल्ट BOLTZ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, और थीटा टेम्परेचर है। देन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बीटा, देन ऑब्टेन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बीटा, दिस इज द मोस्ट टाइम पॉइंट। चलो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है इधर। तो मैं पहले एक हिंट देता हूँ, मैंने बोला था इधर जो जमेला होगा उसमें से एक क्वांटिटी पावर में होगी, चेक करो। अल्फा बाई बीटा में अल्फा है, अल्फा इधर भी है, मतलब अब देखो मैंने बोला था इस इक्वेशन का थोड़ा मैं पोस्टमार्टम करूं तो P इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। व्हाट डू यू मीन बाय P? P इज द प्रेशर। तो अगर ये इक्वेशन प्रेशर का है तो ये अल्फा बाय बीटा भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रेशर। कोई बोले सर ये जो बाजू में है वो कुछ नहीं, क्योंकि ये तो हमने बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ये अल्फा बीटा यानी कि प्रेशर में कितना बदलाव होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन लोग को इतना पता चल गया तो देखो डायरेक्ट, सो हियर सॉल्यूशन स्टार्ट, प्रेशर P इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। तो अपने को किसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, बीटा, सो बीटा इज इक्वल टू सिंपली अल्फा बाय P। अगर बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना हो तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला और अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। मगर प्रेशर का तो डायमेंशनल फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला देगा कौन, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मेरा पावर देगा। तो क्योंकि इसका जो पावर है यू नो दैट अल्फा z अपॉन के थीटा वो होगा डायमेंशनल लेस, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा के थीटा अपॉन z, क्योंकि ये तो 1 हो गया तो के थीटा अपॉन z। क्यों अल्फा को सब्जेक्ट फॉर्म में लाया, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इधर अल्फा है। अब दोस्तों इसमें पहली बार आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को डिस्कस करने जा रहे हो। मैं एक दो पॉइंट और इसके बता देता हूं ताकि आपको पता चले, बराबर। ओके, अब देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसका यूनिट आज से याद रख लो, बहुत इजी क्वांटिटी है, डरने की जरूरत नहीं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट है जूल पर केल्विन, के फॉर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो केल्विन तो किसका यूनिट है, टेम्परेचर का, बिंदास। तो देखो इसका मतलब ऐसा हुआ, देखो मैं जरा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इज इक्वल टू जूल, जूल मतलब एनर्जी, केल्विन मतलब टेम्परेचर। तो आज से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला बनेगा हीट एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, यानी कि एनर्जी अपॉन टेम्परेचर याद रखो, और उसको अगर टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करो तो टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा। कोई बोले ऐसा क्यों किया, इधर होने वाला है, ठीक है ऐसा नहीं करते, चलो रहने देते। अब अपन लोग इसमें जिसे कह सकते सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना शुरू करते। चलो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू, चलो के, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट है जूल पर केल्विन, जूल रिप्रेजेंट एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला m1L2T-2। अब आता है पर केल्विन, तो अपन लोग लिखेंगे K1, क्योंकि केल्विन का K ही होगा, केल्विन इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, याद करो केल्विन इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, तो केल्विन का K होगा। अब आता है बाजू में थीटा, थीटा कौन है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर, K1, क्योंकि अपन लोग जानते हैं टेम्परेचर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लाइक करंट, तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, एम्पियर A1, तो टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा केल्विन K1। तो देखो ये रहा अपना बोल्ट्जमैन का डायमेंशनल फॉर्मूला, बाजू में थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन z क्या है, z डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L1। तो अलविदा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों कैंसल, तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1, इधर L2 इधर L-1, तो L1 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 कैंसल और T-2। दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा।
हमें अल्फा की जरूरत नहीं थी मगर बीटा के कारण अल्फा फाइंड करना पड़ा। अब अल्फा मिल गया, अब बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ शुरू करें। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय प्रेशर। अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T - 2 प्रेशर, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया। सो m1 L1 T - 2 फोर्स अपॉन एरिया यानी L2। तो देखो m1 L - 1 T - 2, तो इसमें कितना कैंसिल हो जाएगा, m1 कैंसिल, T - 2 कैंसिल, इधर L - 1 है जो गुलाटी मार के ऊपर जाए तो क्या हो जाए 2। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बीटा, इट इज L2। सो दिस इज यू कैन सी दैट योर आंसर मोस्ट IMP मार्वेलस वी कैन से द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे डरने की जरूरत नहीं है। कोई बोले क्या डरने की जरूरत नहीं है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अरे तब जब आप क्वेश्चन, ये पेपर जिसे कह सकते हैं, मैं बता रहा हूँ IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड इन IIT and I can also provide the year. So this is IIT 2000, you can see for यानी कि JEE मेन 2004 स्क्रीनिंग टेस्ट पहले लेते हैं उसमें। तो आप जब 12th के बाद एग्जाम देने वाले हो तो उससे पहले तो बोल्ट्जमैन सबको निपट लेने वाले हो बिकॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेप। इसलिए मैंने पहले दिन ही बोला था इस चैप्टर में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आती है वो सभी क्वांटिटीज आप हर बार डील करने वाले हो फ्यूचर में। सो डोंट वरी। तो पहले अपना एनालिसिस करो फिर मैं वापस समझाता हूँ। तो देखो इधर हमारा मेन टारगेट है P प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा e⁻⁻k अल्फा z अपॉन k थीटा। अपने को बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिर्फ और सिर्फ जो क्वांटिटी दी है यानी अल्फा बाय बीटा या प्रेशर उसमें चेंजेस रिप्रेजेंट करेगा। वो खुद को, ये दोनों को ये बंदा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, डोंट वरी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो बेसिक प्रेशर को अफेक्ट नहीं करेगा। अफेक्ट नहीं करेगा मतलब चेंजेस होगा, मतलब खुद को, और जिसे कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के साथ एड सब मल्टीप्लाई ऐसा नहीं करेगा, डोंट वरी। तो प्रेशर सिर्फ अल्फा बाय बीटा ही रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, तो ये जो पोर्शन है वो तो अल्फा बीटा में कितना चेंज होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। बीटा अपना टारगेट है तो बीटा हमने सब्जेक्ट फॉर्म में लाए अल्फा बाय प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हम आराम से फाइंड कर लेंगे अल्फा। इसलिए मैंने आपको हिंट दी कि आगे जो झुमका देंगे वो जमेले में से आपका एक कॉन्टेक्ट इधर पड़ा होगा ताकि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पेयर पढ़ने पड़े। अब हमें अल्फा फाइंड करने के लिए ये पावर देखना पड़ेगा। तो हम तो जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर है, व्हाटएवर द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इट इज डायमेंशनलेस। तो अल्फा z अपॉन k थीटा इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। तो इसमें से मैंने अल्फा को सब्जेक्ट फॉर्म में लाया, सो k थीटा अपॉन z। अब k आपके लिए पहली बार है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसका यूनिट याद रखो जूल पर केल्विन। तो जूल मतलब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, केल्विन यानी K1 टेम्परेचर। तो आज से बोल्ट्जमैन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता चल गया, m1 L2 T - 2 K - 1। देखो ये K को ऊपर भेज देते तो ये हो जाता, मगर अपने को ऐसा नहीं, ऐसा लिखने का बिंदास। एनर्जी अपॉन केल्विन मल्टीप्लाई बाय थीटा टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का K1 होगा, उसके नीचे डिस्टेंस है तो L1 होगा। ये K1 कैंसल तो m1 2 में से 1 कैंसल तो ओनली 1 T - 2। दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा। ये अल्फा को इधर यूज करो और बीटा का आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ऐसा एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो जिसे कह सकते अपने पास हो तो अपन डिस्कस करते हैं। ओके, सो वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली। एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिलेटेड ही क्वेश्चन में देता हूँ ताकि आपको और पता चले। चलो सो अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आपको होमवर्क में ट्राई करना है, डोंट वरी, बट वी कैन से दैट योरसेल्फ। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके जस्ट अ मिनट, क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है ऐसा।
जस्ट मिनट, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन का रेंज अपने पास बहुत ही बड़ा है, नो डाउट, बट अपन लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो पहले ट्राई करते हैं। ओके, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड। फिर भी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जस्ट यू टू सॉल्व इट। ओके, स्पीड s is equal to a into 1 minus e raised to minus alpha x t square, where x is simply representing distance and t representing time, then obtain dimensional formula for alpha। एक क्वेश्चन ट्राई करनी है, इजी नो डाउट। मगर ये जो जोरदार क्वेश्चन, उसके रिलेटेड क्वेश्चन अपन लोग नेक्स्ट लेवल पे ले आएंगे, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ सभी क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है फ्रेंड्स। सो आज का लेक्चर हमने देखा, 2 पॉइंट्स रिलेटेड था। नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नंबर 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल, देयर इज अ मिस्टेक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन एंगल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन देन यू हैव टू फोकस ऑन पावर। ये दोनों ऑलवेज डायमेंशनलेस। तो ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चंस मैंने दिए वो होमवर्क उसके सिवा इधर सॉल्व किए, वो भी अपनी नोटबुक में कन्वर्ट करो। नेक्स्ट लेक्चर में इसका थोड़ा और पॉइंट्स डिस्कस करके एक लेवल आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। सो बी अलर्ट एंड बी सेफ।